Exam dost, success का host, सैनिक नवोदय में topmost. Hello and welcome everybody. Today we are going to learn a very important and interesting topic: food preservation methods and cooking. Now we know that food is very essential for our survival. But there's one more point, that the food gets spoiled very easily. And if food goes bad, it looks different, it smells bad, and if we consume such food, it can even make us sick. So, to keep food safe and fresh for a long time, we use food preservation techniques, about which we are going to learn. Moreover, cooking is also a very important process. It not only makes the food tasty, but also it kills harmful germs in the raw food items. And cooking also makes the food easier for our body to digest. By the end of this chapter, you will understand why food spoils, how we can protect it, the different methods of preservation, and the importance of cooking. The topic will also help you in daily life, because we see these things happening in our kitchen every day. You must have noticed how the food gets spoiled if kept for a very long time outside. So, food preservation protects our food, and cooking improves the taste of food and the nutrition. Once you understand these concepts, you will start noticing how your family uses these methods every day in the kitchen. Let's begin our lesson and let's understand the cooking. Cooking is the art, science, and craft of preparing and using heat to prepare food for consumption. So, cooking is the process by which we transform the raw food products to the items in which they are now fit for consumption. Cooking increases palatability और tastiness. Palatability का मतलब tastiness होता है. So, cooking से किसी भी food की जो taste होती है वो increase हो जाती है, as the food becomes good enough to eat or drink. That is a common understanding. कोई भी आप रॉ फूड आइटम लेंगे एज वेल एज अगर आप कुक्ड लेंगे, सो कुक्ड विल बी स्लाइटली बेटर. वो देखने में भी अच्छा होता है, स्मेलिंग भी करता है अच्छा, नाइस, एंड इट इज टेस्टी ऑल्सो टू कंज्यूम और टू ईट. Adding further, cooking provides balanced meal, as the different ingredients combined together make it easier to provide a balanced diet. Now we know balanced diet. Nutrients भी होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, रफेज होना चाहिए, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे होने चाहिए, विटामिन्स हैं वो होने चाहिए. सो कुकिंग से ये सारे विटामिन्स बैलेंस हो जाते हैं और हमारी डाइट बैलेंस बन जाती है. कुकिंग स्टेरिलाइजेस so that the cooked food can be stored for a longer time, increasing its shelf life that prevents food poisoning. Now sterilizes का मतलब ये हो गया कि जब हम कुकिंग करते हैं, so there are many bacteria, many microorganisms which are not fit for the human consumption. उसमें कई ऐसे बैक्टीरिया हैं, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिससे अगर आप रॉ फूड खाएंगे तो आपको इट कैन क्रिएट सम और द अदर काइंड ऑफ ट्रबल. हम क्या करेंगे, हम फूड को कुक कर देंगे
अच्छा, कुक जब फूड हो जाता है तो उसे थोड़े हम लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे उसकी शेल्फ लाइफ, मतलब जब आप उसे कहीं पर स्टोर करके रखते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक सेफ रहेगा, ज़्यादा दिन तक आप उसे कंज्यूम करने लायक बना सकते हैं, और जिससे आपको फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। क्योंकि अगर वो फूड स्पॉइल्ड हो गया, अगर उसके अंदर बैक्टीरियाज हैं, अगर उसके अंदर फंगाई है, तो ऐसे खाने को खाने से, ऐसे फूड को कंज्यूम करने से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। लेकिन कुकिंग से ये सारे रिस्क खत्म हो जाते हैं। Some of these disease producing germs are killed by cooking due to high temperature during cooking process. Now very important to understand is कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये मोस्ट ऑफ देम 95% हीटिंग प्रोसेस है, क्योंकि कुकिंग करते समय हम हीट करते हैं, वॉश करते हैं, तो वॉशिंग से भी वो बहुत सारे कम हो जाते हैं, प्लस कुकिंग से वो मर जाते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट टॉलरेट हाई टेम्परेचर, और कुकिंग जनरली वी डू इन अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो इससे क्या होता है कि जो फूड के बैक्टीरियाज हैं, जो हार्मफुल एजेंट्स हैं, यहाँ पर जैसे कि इन्होंने जर्म्स लिखा हुआ है, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं बाय कुकिंग प्रोसेस। कुकिंग not only kills the germs but it also adds more nutritive value and definitely flavor to the food. खाना जब हम कुक करते हैं तो न्यूट्रिशन उसका इंक्रीज हो जाता है। इसलिए इंक्रीज हो जाता है क्योंकि रॉ फूड मटेरियल में कुछ इस तरह के प्रोटीन्स और विटामिन्स हैं जिन्हें अगर थोड़ी सी हीट दी जाए, थोड़ा सा कुक किया जाए तो और बेटर हो जाते हैं। फ्लेवर इज गोज विदाउट सेइंग कि कुकिंग से फ्लेवर तो डेफिनेटली ऐड हो ही जाता है, तो थोड़ा टेस्ट उसका बढ़ जाता है। कुकिंग गिव्स वेराइटी टू द फूड एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस कैन बी मेड यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। अच्छा, कुकिंग से फूड में वेराइटी भी आ जाती है, क्योंकि फूड को कुक करने के मेथड से उसका टेस्ट चेंज होता है, उसका प्रेजेंटेशन चेंज होता है, अपीयरेंस चेंज होता है। बॉइलिंग कुछ चीज़ें हैं वो बॉइल करके खाने में अच्छी लगती हैं, कुछ होती हैं वो आप फ्राई करके खाओ, रोस्ट करके खाओ, बेक करके खाओ, ग्रिल करके खाओ, एंड यू कैन एक्चुअली डू द सेम थिंग विथ वन सिंगल आइटम। आप किसी चीज़ को बॉईल करके भी खा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइस को आप बॉईल करके खा सकते हैं, राइस को आप फ्राई करके भी खा सकते हैं, राइस को हम राइस का फ्लोर बनाकर, उसके बॉल्स बनाकर उसे रोस्ट भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, हम उसका पैटी फॉर्म लेकर ग्रिल भी कर। सो आप किसी भी एक फूड आइटम को अलग अलग तरह से कुक करके भी वैरायटी ला सकते हैं। In this picture here we can see the different methods of cooking. For example, there's baking, barbecuing, grilling, then there's a pan frying, shallow frying, stir frying, sauteing, roasting, deep frying. So these are the different techniques. Searing, by which we can cook the same food material into different varieties just to get different types of food. Next, here we that cooking makes the food economical, as the cooked leftovers could be utilized to prepare new dishes. यहाँ पर ये ऐसा बता रहे हैं कि जो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जो थोड़ा बहुत खाना बच जाता है, उस खाने को भी हम कुछ नई डिशेस बनाने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा राइस बच जाता है तो हम उसका राइस फ्राई बना सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो लेफ्ट ओवर फूड से भी हम कुछ ना कुछ नए डिशेस बना सकते हैं। अगेन देयर इज अ पिक्चर हियर टू शो द वेरियस टाइप्स ऑफ कुकिंग टेक्निक्स। तो यहाँ लेफ्ट साइड में पहले आप देख सकते हैं रोस्ट है, सो दिस इज ड्राई हीटिंग। रोस्ट है, ग्रिल है, बेक है, बारबेक्यू है, टोस्ट है, so this is dry heating techniques. Then there is a fry technique. Fry technique you can see shallow fry है, stir fry है, deep fry है, and then there is a boiling technique. Boiling में क्या क्या आ जाता है? Stew करना. You see all of them are using heat to produce steam, तो वो boiling approach है। तो direct boil करना है, steam से cooking करना है। Stew करना is also another technique जिसमें boiling का हम use करते हैं। So these are the various ways of cooking the food or preparing the food. Moving further to the raw food, carrot, radish, cucumber, tomato. These are the types of food which can be eaten raw without cooking. So they are called raw food. So raw food are the food which we can eat without cooking. We generally eat fruits and some of the vegetables in raw form.
as their nutritional value gets lost if we cook them. So some of the vegetables, mostly the leafy vegetables, we don't cook, because if we cook them, the nutrition value, उनकी जो nutrition है वो कम हो जाएगी. Example of raw food. But before consuming raw food, we should be careful that we should wash the fruits and vegetables thoroughly before eating them raw. What are the benefits of raw food? Raw food contain less calories as compared to the processed food. So eating more raw foods leads to weight loss. तो अगर किसी को वज़न बढ़ गई है, किसी को अगर ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, वेट ज़्यादा है, सो दे शुड ईट मोर एंड मोर रॉ फूड्स. क्योंकि रॉ फूड खाने से कैलोरीज आपको कम मिलेंगी, पेट आपका भर जाएगा लेकिन कैलोरीज आपको कम मिलेंगी. जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतने में आपका काम हो जाएगा. ऐसे आपका वेट लॉस होगा. Now, other than the weight loss, eating raw food reduces blood pressure and blood sugar. It helps also to reduce the risk of chronic disease. Chronic disease मतलब ऐसी disease जो लंबे समय से चली आ रही. रॉ फूड हम खाएंगे, ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा हमारा. ज़्यादा फ्रूट्स आप लेंगे, ज़्यादा रॉ वेजिटेबल्स आप लेंगे, ब्लड शुगर भी अच्छा होगा, ब्लड प्रेशर भी अच्छा होगा. रॉ प्लांट फूड cost much less than meat, fish and other animal products. एक रिलेटिव कंपैरिजन बताया है कि जो प्लांट बेस्ड फूड्स हैं वो उनकी जो प्राइस होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू जो एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं उनसे. Methods of cooking. Now moving on to the methods of cooking. There are different types. There's boiling, there's simmering. Simmering, another name is stewing. Then steaming, and finally pressure. So these are the four methods you can see here in this diagram: simmering, boiling, steaming and stewing. The next method of cooking is cooking by dry heat. The common techniques of cooking by dry heat are baking, roasting and grilling. Also, there are methods of cooking by frying. There are two types: deep frying and shallow frying. Let us start with boiling. When food is cooked in water reaching at temperature above 100 degree Celsius, it is in boiling stage. We know that the boiling point of water is 100 degree. So when we boil the food with water at 100 degree Celsius, we call it boiling. In this method the food is completely immersed, मतलब डुबा दिया जाता है पानी में, and boiled until it becomes soft and tender. और तब तक बॉईल किया जाता है जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए, टेंडर ना हो जाए. जनरली जो हार्ड फूड आइटम्स होते हैं उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पटू. Advantages of boiling: it is the simplest method of cooking as it does not require special skills and equipments. कुकिंग करने का ये सबसे आसान तरीका है. इसके लिए कोई आपको खास टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है. किसी भी कंटेनर में आप ये काम कर सकते हैं. कुक्ड फूड इज़ लाइट एंड ईजी टू डाइजेस्ट एज कम्पेयर टू द रॉ फूड. जो खाना पक जाता है वो थोड़ा लाइट हो जाता है. लाइट इन टर्म्स फॉर आवर बॉडी, हमारे बॉडी में अब्जॉर्प्शन के लिए, डाइजेशन के लिए वो आसान हो जाता है. नेक्स्ट दे आर टॉकिंग इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रोपोर्शनेट टू द क्वांटिटी ऑफ फूड एंड द फूड इज कवर्ड ड्यूरिंग बॉइलिंग, द न्यूट्रिएंट्स आर रिटेन्ड इन द फूड टू अ लार्ज एक्सटेंट. बता रहा है कि अगर आप जो भी फूड कुक कर रहे हैं, अगर आप बॉइलिंग से कोई खाना कुक कर रहे हैं, तो अगर आपने उसमें ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं डाला, प्रोपोर्शनेट पानी डाला, और कुकिंग करते समय, बॉइलिंग करते समय फूड को कंप्लीटली कवर कर दिया, तो उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिटेन हो जाते हैं, काफ़ी हद तक रिटेन हो जाते हैं. इवन विटामिन सी जो है वो है जो बह जाता है, धुल जाता है. जो सबसे पहले ख़त्म होता है वो विटामिन सी है.
लेकिन उसके अलावा काफ़ी हद तक वो रह जाता है अगर आप बॉईल करते समय ज़्यादा पानी ना लें और दूसरा बॉईल करते समय उसे आप कवर कर दें. नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉइलिंग. फर्स्ट इज डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो कोई भी चीज़ बॉईल करनी है तो टाइम तो थोड़ा आपको देना पड़ेगा based on what is the boiling point of that food. Next, water soluble pigments like betanin from beetroot may be lost. सिर्फ बेटानिन नहीं, विटामिन सी जो टमाटो में होता है उसको भी अगर आप बॉईल करते हैं तो वो हो सकता है कि वो चला जाए. इसी तरह बीटरूट वेरी वेरी यूज़फुल हमारी बॉडी के लिए, तो उसका भी बेटानिन जो होता है वो अगर आप बॉइलिंग प्रोसेस करेंगे तो उसमें वो चला जाता है. So it is suggested that some foods you should not boil too much, a little you should boil. और अगर without boil आप खा रहे हैं ऐसी चीज़ें like beetroot is very useful for our brain also, तो उसके nutrients जो होंगे वो retain रहेंगे. Next, the boiled foods are not considerably tasty बिकॉज फ्लेवर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग बॉइलिंग. तो जब हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को बॉईल कर देते हैं तो उसके फ्लेवर्स क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं. तो जनरली जो बॉइल्ड फूड होता है ये लोग पसंद नहीं करते हैं. जब हम सिक होते हैं तब हमें इस तरह का फूड दिया जाता है, या आप देखेंगे हॉस्पिटल वगैरह में थोड़ा बॉइल्ड फूड दिया जाता है क्योंकि ये टेस्टी नहीं होता पर इसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी होते हैं. नेक्स्ट, दे से दैट ओवर बॉइलिंग ऑफ फूड मेक्स इट मशी. अगर आप किसी भी फूड प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा बॉईल कर दोगे तो वो मशी मतलब हलवा हो जाएगा, हलवा जैसा हो जाएगा. इफ़ द फूड इज़ बॉइल्ड इन एक्सेस वाटर विच इज़ लेटर थ्रोन अवे. अगर आपने पानी को बहुत ज़्यादा फूड को बहुत ज़्यादा पानी में उबाला है तो पानी क्या करते हैं, पानी को हम फेंक देते हैं. So it leads to draining of water soluble nutrients like विटामिन सी जो हमने पहले बात की, विटामिन बी एंड मिनरल्स. तो बहुत ज़्यादा पानी में अगर खाना हम बॉईल करेंगे और जो पानी है बॉईल किया हुआ उसे जनरली हम फेंक देते हैं और उस पानी में होता है विटामिन सी, विटामिन बी और कई सारे मिनरल्स. तो अगर ऐसा मम्मी ऐसा कर रही हैं कि मम्मी ने कुछ बॉईल किया है फूड प्रोडक्ट तो उसका जो पानी होता है उसे आप अगर अच्छे से सब वॉश किया हुआ है तो उस पानी को आप ना फेंकिए. पहला तो आप उसको पी सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट वाटर है वो. और अगर आप उसे नहीं पी सकते, अगर आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो आप क्या करें, जो आपका गार्डन है घर का उसमें उसे डाल दीजिए. इट विल बी वेरी गुड फॉर द प्लांट्स इन योर हाउस गार्डन में आप वहाँ डालें तो भी उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होगा. Next is simmering. In this method, the food is boiled at a lower temperature than the boiling point on a constant flame to produce continuous simmer. इसको धीमी आंच में पकाना बोलते हैं. बॉयल तो होगा बट कम टेम्परेचर पर होगा. द प्रोसेस ऑफ सिमरिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड इन हॉट लिक्विड्स एट अ टेम्परेचर ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस. तो पूरी तरह उसे बॉयल नहीं करेंगे, हम उसे सिमर करेंगे, धीमी आंच पर पकाएंगे. दैट इज सिमरिंग. Next, steaming. Now, boiling water we know if we continuously boil the water at 100 degree Celsius, तो पानी जो है वो बॉयल होने लगेगा. बॉयल होने लगेगा मतलब वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाएगा. The boiling water that turns into steam, it vaporizes, and when it vaporizes, it produces heat to cook the food. That is called steaming. तो जब हम steam से food को पकाएंगे तो उसे steaming कहेंगे. When food is steamed, it is kept away from the boiling water, but it comes into direct contact with the steam. तो boiling में हम अपने food को पानी में नहीं डालते, हम steam का उससे direct contact कराते हैं. Further, the mixture used for idli. Idli is a common household food product. The mixture used for idli is fermented overnight and then cooked in steam. तो इडली बनाने के लिए जो मिक्सचर हम यूज़ करते हैं, जो डो हम यूज़ करते हैं, उसे हम फर्मेंट करते हैं ओवरनाइट. फर्मेंट करने का मतलब उसे हम इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रख देते हैं, उसे हम बंद करके रख देते हैं, उसे हम सील टाइट करके रख देते हैं जिससे उसके अंदर ऑक्सीजन ना जा सके. अब उसके अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरियाज की ग्रोथ होगी, हेल्दी बैक्टीरियाज की ग्रोथ होगी, और ऐसे प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलेंगे. और उसके बाद हम उसे स्टीम में कुक करते हैं. द नेक्स्ट इज pressure cooking. Pressure cooking is a very common method. Pressure cooking consists of a pressure cooker which is a heavy metal body with a lid
एंड अ वेंट पाइप। वेंट पाइप मतलब उसमें से गर्म स्टीम निकलने के लिए एक छोटी सी पाइप होती है, एक छोटी सी नली होती है, एक छोटा सा होल होता है। विद द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ अबाउट 120 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ फूड। तो जब हम प्रेशर कुकर में फूड को कुक करते हैं तो उसका जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट 120 या उससे भी ज़्यादा चला जाता है। Now talking about the pressure cooking further, the method of pressure cooking, it helps in various ways. Some of them are listed. First, it is a quick and uniform method of cooking food. Quick मतलब definitely जो boiling का जो time है वो pressure cooker में कम हो जाता है. यूनिफॉर्म मेथड मतलब पूरे के पूरे फूड को वो बराबर कुक करता है, बराबर बॉईल कर देता है, बराबर प्रेशर से अपने कुक करता है. Next, it takes lesser time to cook food because of its high temperature and high pressure and thus saves fuel. अब जब आप प्रेशर कुकर में कोई चीज़ बनाएंगे तो टाइम कम लगेगा. आप ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा प्रेशर यूज़ कर रहे हैं तो कम टाइम लगेगा. कम टाइम लगेगा तो हमारा फ्यूल, जो भी हम गैस यूज़ कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, वो भी हमारा सेव होता है. डिफरेंट आइटम्स कैन बी कुकड एट द सेम टाइम. तो अलग अलग चीज़ों को आप एक साथ कुक कर सकते हैं यूजिंग द प्रेशर कुकिंग मेथड. फर्दर, इट रिक्वायर्स लेस अटेंशन, सो लेस लेबर इज रिक्वायर्ड. आप प्रेशर कुकर सिंपल है, आपने सामान डाल दिया, पानी डाल दिया, उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल दिया ताकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए और जो भी आइटम उसके अंदर है वो जल्दी बॉईल हो जाए. और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद उसे बंद कर देना है, उसका ऊपर का पैन लगा देना है और आपको फ्री हो जाना है. तो यहाँ पर कम मेहनत की ज़रूरत है, कम अटेंशन की ज़रूरत है. नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट और फ्लेवर लॉस इज लेस ड्यू टू डिक्रीज्ड कुकिंग टाइम. अब उसका कुकिंग टाइम कम है, जल्दी खाना बन रहा है, तो फ्लेवर लॉस नहीं हो रहा है, न्यूट्रिएंट लॉस नहीं हो रहा है, कम हो रहा है. थोड़ा बहुत तो लॉस होगा पर उतना ज़्यादा नहीं होगा एज कंपेयर टू प्योर बॉइलिंग. हार्ड फूड आइटम्स लाइक राजमा आर कुकड इजीली. राइस है, राजमा है, बीन्स है, आराम से आप प्रेशर कुक में उसको कुक कर सकते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ विसल इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ कुकिंग. और उसमें विसल लगी होती है, तो जैसे ही आपकी कुकिंग कंप्लीट होती है, उसका जो कंप्लीट प्रेशर कुकिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो आपको विसल सुनाई देती है. सो दैट इज अनदर डिफरेंट ईज ऑफ cooking the food by pressure cooking method. The next is baking. Baking is cooking food by dry heat in an oven or an enclosed baking utensil. तो बेकिंग में हम ड्राई हीट का, हम वाटर का यहाँ यूज़ नहीं कर सकते. या तो हम कोई ओवन यूज़ करते हैं या एनक्लोज मतलब जो पूरी तरह से क्लोज है, ऐसा कोई बेकिंग यूटेंसिल यूज़ करते हैं. Example of baked food items: cakes, pastries, cookies, muffins, pies, breads, rolls. Baked food items. Advantages of baking, let's see. A wide range of savory and sweet food items can be prepared. अलग अलग तरह के चॉकलेट भी बना सकते हैं, केक भी बना सकते हैं, पेस्ट्री भी बना सकते हैं, सारे स्वीट फूड आइटम्स हम इससे बना सकते हैं. बेकरी प्रोडक्ट्स आर अपीलिंग टू द आई एंड टू द माउथ. टेस्टी होते हैं, देखने में भी सुंदर होते हैं और टेस्टी भी होते हैं. बल्क कुकिंग कैन बी डन विथ यूनिफॉर्मिटी ऑफ कलर एंड डिग्री ऑफ कुकिंग. अच्छा, बल्क कुकिंग मतलब एक साथ हम कई सारे चीज़ें बना सकते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ बेकिंग: इट रिक्वायर्स रेगुलर अटेंशन. आपको वहाँ पर खड़े रहना पड़ता है, वहाँ पर बार बार देखने रहता है, अदरवाइज थोड़ा कुछ वो बर्निंग वगैरह का रिस्क हो सकता है. इट इज़ अ एक्सपेंसिव मेथड ऑफ कुकिंग क्योंकि यहाँ पर ओवन चाहिए हमें. नेक्स्ट, रोस्टिंग एंड ग्रिलिंग. रोस्टिंग एंड ग्रिलिंग इज ऑल्सो अ ड्राई हीट कुकिंग मेथड. रोस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कुकिंग फूड सच एज मीट, पोल्ट्री and fish in a open fire or in a oven using dry heat method. रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, ओपन फायर में जनरली जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट हैं उनके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं. जिनको ज़्यादा हीट चाहिए, ओपन फायर में हम उसको रोस्ट करना मतलब भूनना, उसको हम भून लेते हैं. द फूड इज कुकड अंटिल इट रीचेज गोल्डन ब्राउन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर. तब तक कुक किया जाता है जब तक फूड हमारा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, अंदर से और बाहर से, दोनों तरफ से. After roasting, it is grilling. Grilling is a form of cooking that involves dry heat. तो grilling में भी dry heat use करना है. It is applied to the surface of food by a electrical appliance
गैस फ्लेम और ग्लोइंग चारकोल। और ग्रिलिंग में भी लगभग रोस्टिंग जैसा ही है, पर रोस्टिंग में पूरी तरह कवर्ड होता है, पर इसमें पूरी तरह कवर्ड नहीं होता, सिर्फ उसके ऊपर हम हीट अप्लाई करते हैं। डिशेस लाइक कबाब, स्ट्रीक्स, सैंडविचेस आर प्रिपेयर्ड बाय ग्रिलिंग। नेक्स्ट, फ्राइंग। द कुकिंग ऑफ फूड इन हॉट फैट्स और ऑयल इज कॉल्ड फ्राई। तेल में जब हम खाने को कुक करें तो उसे फ्राइंग बोलेंगे। द टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ फ्राइंग इज बिटवीन 350 टू 375 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब फ्राइंग में भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है शैलो फ्राइंग। शैलो फ्राइंग इज कुकिंग फूड इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट और ऑयल इन अ फ्राइंग पैन इज कॉल्ड शैलो फ्राई। तो ज़्यादा तेल नहीं डालते, उसे बोलेंगे शैलो फ्राई। डीप फ्राई, कुकिंग फूड इन प्री हीटेड डीप ऑयल और फैट इज कॉल्ड डीप फ्राइंग। तो डीप फ्राई मतलब पूरी तरह तेल में तल देना, शैलो फ्राई मतलब थोड़े से तेल में उसे फ्राई करना। मूविंग फर्दर ऑन, एडवांटेजेस ऑफ फ्राइंग। फ्राइंग गिव्स अ क्रिस्प एंड फर्म आउटर कोटिंग टू द फूड वाइल कीपिंग इट टेंडर एंड जूसी इनसाइड। तो फ्राई से क्या होता है, बाहर की तरफ वो थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है और अंदर से वो जूसी और सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी हो जाता है खाने में। द फ्राइड फूड ऑब्टेन्स अ यूनिक फ्लेवर। किसी भी चीज़ को आप फ्राई कर दो तो फ्लेवर उसका थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा, थोड़ा अलग हो जाएगा। फ्राइड डिशेज आर प्रिपेयर्ड मच फास्टर देन डिशेज प्रिपेयर्ड बाय एनी अदर मेथड ऑफ कुकिंग। तो फ्राई करना सबसे जल्दी इस मेथड से हम खाने को कुक कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। बॉइलिंग में, स्टीमिंग में, आप किसी भी में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। फ्राई में सिर्फ तेल में डालो, उसे हीट दो और निकालो, दैट्स कंज्यूम। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्राइंग, हाई लेवल ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल गोज इनटू फ्राइड डिशेस। अब फ्राई का मतलब ही हो गया ऑयल में उसे करना है, एंड ऑयल मीन्स फैट एंड वेरी अनहेल्दी पार्ट इज कोलेस्ट्रॉल। तो जब आप फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा फूड में फैट हो जाता है, जो भी आप डिश बनाते हैं उसमें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल चला जाता है। फ्राइड फूड्स आर नॉट वेरी इजीली डाइजेस्टेबल। इसे डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें फैट बहुत ज़्यादा है, तो फैट को ब्रेक डाउन करने में हमें टाइम लगता है, हमारी बॉडी को काफ़ी एफर्ट लगते हैं। तो जो फ्राइड डिशेज होंगे उन्हें डाइजेस्ट करने में थोड़ा आपको एफर्ट ज़्यादा लगेगा। द सरफेस ऑफ फ्राइड फूड कैन गेट बर्नड ईजिली इफ द टेम्परेचर इज टू हाई। ये भी एक और डर है, क्योंकि अगर आप फ्राई कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप डीप फ्राई कर रहे हैं और थोड़ा भी इधर उधर हो गया, क्योंकि वो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़रा भी आपकी चूक हो गई, इफ़ यू डू अ स्लाइट एरर, तो वो जल जाएगा, जो आउटर लेयर होगा वो उसका जल जाएगा और उससे उसका जो टेस्ट है बहुत ही ख़राब हो जाएगा। द एग्जाम्पल ऑफ फ्राइड फूड इज पोटैटो चिप्स, पकौड़ाज, वड़ाज, समोसाज, फ्रेंच फ्राइज। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्राइड फूड जिसमें काफ़ी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, फैट आपको मिलेगा। Moving on to the next, the fermentation. Fermentation is a process by which some microbes are added to the food to make it soft and fluffy. Fermentation क्या है? हम जो फूड प्रोडक्ट है उसमें कुछ माइक्रोब्स मिला देते हैं। माइक्रोब्स मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला देते हैं, जिससे वो फूड सॉफ्ट हो जाता है और फ्लफी हो जाता है। During fermentation, microorganisms use up some nutrients of food and change it into better quality nutrients. फर्मेंटेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने फूड में डाला है वो फूड के कुछ न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लेता है और उसे बेटर क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है। जनरली फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो माइक्रोब्स हम मिलाते हैं, इट इज़ फंगाई। Now fungi has a habit, or rather a better term will be, ये जो माइक्रोब्स होते हैं दे आर यीस्ट। हम इनमें यीस्ट मिलाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल अगर आपने देखा है कि अगर आपके मदर घर में केक बनाते हैं या इडली बनाते हैं, तो इडली में वो यीस्ट पाउडर या केक में वो यीस्ट पाउडर डालते हैं, जिससे कि केक हमारा सॉफ्ट होता है, इडली भी हमारी सॉफ्ट होती है, फ्लफी होती है।
और टेस्टी होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ये ईस्ट डालते हैं तो ईस्ट एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि विदाउट ऑक्सीजन अपने प्रोसेस को, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, अपने कोई भी प्रोसेस करने के लिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो विदाउट ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से हमारी इडली सॉफ्ट होगी, फ्लफी होगी, ज्यादा बड़ी होगी। ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है विच इज प्रेजेंट इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी, इन सभी में ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस है जिसके आप बबल्स देखते हैं। जब आप इस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक को ओपन करेंगे तो आपको बबल्स दिखाई देते हैं। व्हाट आर दीज बबल्स? दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड इट इज द सेम गैस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट इन इडली मेकिंग और केक मेकिंग। इसका क्या काम है? खाने को ये सॉफ्ट, फ्लफी, टेस्टी बनाता है, फूल जाता है हमारा खाना। दैट इज फर्मेंटेशन। नेक्स्ट, fermentation, it is the process by which the sugar is converted into alcohol. शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का ये काम करते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन पूछा गया है, what is the bacteria present in the curd? It is the lactobacillus bacteria. What is the function? It converts the milk into curd. दूध को दही बनाने का काम करता है ये बैक्टीरिया। दही में बहुत सारा पाया जाता है ये लैक्टोबैसिलस। एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेड फूड आइटम्स आर इडली, डोसा, योगर्ट। योगर्ट मतलब दही हो गया। फर्मेंटेशन इंप्रूव्स द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फूड बाय ब्रेकिंग द प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इनटू स्मॉलर पार्ट। फर्मेंटेशन से खाने की डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ती है। हमारे फूड में जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उसे स्मॉलर पार्ट में वो ब्रेक करते हैं और जब वो स्मॉलर पार्ट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं तो वो डाइजेस्ट करने में इजी हो जाते हैं। द नेक्स्ट इज द जर्मिनेशन एंड स्प्राउटिंग। जर्मिनेशन, स्प्राउटिंग, अंकुरित करना। इट इज अ प्रोसेस इन विच स्मॉल शूट्स कम आउट ऑफ अ दाल और सीरियल व्हेन केप्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। आपने देखा होगा अगर आप चना या जो इंडियन ग्राम होता है उसे पानी में रखें और ओवरनाइट आप रखें तो उसकी छोटी सी टेल निकल आती है, उसे शूट कहते हैं। दाल में भी ऐसा होता है, चने में भी होता है, कई सारे सीरियल्स में भी ऐसा होगा। दैट इज कॉल्ड स्प्राउटिंग और जर्मिनेशन। गिवन एन एग्जांपल हियर, ग्रेन्स लाइक व्हीट, बाजरा, ज्वार एंड पल्सेस लाइक मूंग, चिकपी एंड ब्लैक ग्राम, दे आर स्प्राउटेड। ऐसे का हम जर्मिनेशन करते हैं, उसे पानी में डालकर छोड़ते हैं। द टाइम दैट ईच ग्रेन और पल्स नीड्स फॉर सोकिंग एंड स्प्राउटिंग इज डिफरेंट, रेंजिंग फ्रॉम 8 to 16 hours फॉर सोकिंग एंड 12 to 24 hours फॉर स्प्राउटिंग। तो सभी जो ग्रेन्स हैं, जो अलग अलग पल्सेस हैं जिनका हम जर्मिनेशन करते हैं, उनका टाइम अलग अलग होता है। सोक करने के लिए 8 to 16 hours होता है, स्प्राउट के लिए 12 to 24 hours होता है। Advantages of sprouting, it increases the content of vitamin C and vitamin B complex in food item। तो अगर आप स्प्राउट्स लेंगे तो विटामिन सी आपको ज़्यादा मिलेगा, बी कॉम्प्लेक्स आपको ज़्यादा मिलेगा। इट इंक्रीजेज द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन की एबिलिटी बढ़ेगी। इट इंक्रीजेज द प्रोटीन कंटेंट एंड रिड्यूसेस द कुकिंग टाइम ऑफ लेग्यूम्स। अगर आप देखा होगा, आपने मम्मी दाल बनाती है या राजमा बनाती है या चना बनाती है तो मम्मी उसे पहले सोक कर देती है। सोक करने से क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है तो उसका कुकिंग टाइम कम हो जाता है और उसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ स्प्राउटिंग। नेक्स्ट, स्प्राउट, they help in boosting blood circulation due to significant amount of iron and copper। ये जितने भी स्प्राउट हैं, ग्रीन ग्राम है, ग्राउंडनट है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
क्योंकि उनमें बहुत सारा आयरन और बहुत सारा कॉपर है. इट ऑल्सो कंटेन्स विटामिन ए एंड फाइबर इन हाई अमाउंट. विटामिन ए वी नो नाइट ब्लाइंडनेस की विजन रिलेटेड प्रॉब्लम इससे नहीं होगी, तो स्प्राउट में ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं. सो वी शुड मेक इट अ रेगुलर पार्ट ऑफ आवर डाइट. Now, after the cooking methods, it is time to discuss the food preservation. The process of treating and handling food in such a way that it stops or greatly slows down the food spoilage while maintaining its nutritional value, texture and flavor is called food preservation. तो food preservation क्या है कि फूड को इस तरह से ट्रीट करना, इस तरह से हैंडल करना, इस तरह का ट्रीटमेंट देना ताकि उसका जो स्पॉइलिंग का प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से कम हो जाए या लगभग बंद हो जाए, खाना हमारा खराब ना हो, साथ ही साथ उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बनी रहे, उसका टेक्सचर जैसा हमने पकाया था वैसा बना रहे, उसका फ्लेवर बिल्कुल वैसा ही रहे. ऐसे हम इस मेथड को, ऐसे प्रोसेस को हम फूड प्रिजर्वेशन कहेंगे. Now moving ahead with food preservation, when the food is no longer fit for eating, it is called the food spoilage. Food spoilage क्या होता है? जब हम खाना खाने लायक नहीं रह जाता, उसे कहते हैं कि spoil हो गया है. Food spoilage is the name. You must have noticed the spongy growth seen on bread if kept outside the refrigerator for few days is an example of food spoilage. कई बार आपने देखा होगा कि जब आप ब्रेड को कुछ दिनों के लिए फ्रिज में ना रखकर बाहर रख दे तो उसमें थोड़े से स्पंज जैसे ग्रोथ होने लगते हैं. पहले वाइट कलर के होते हैं, बाद में ब्लैक कलर के हो जाते हैं. इसका मतलब अब वो ब्रेड आप नहीं खाएंगे, आपको थोड़ा सा उसका टेस्ट चेंज हो जाता है. सो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फूड स्पॉइलेज. क्या बोलते हैं? ब्रेड खराब हो गया, नहीं खाना चाहिए. फूड स्टोरेज मीन्स कीपिंग फूड इन अ स्पेशल प्लेस अंटिल इट इज नीडेड फॉर कंजम्पशन. फूड स्टोरेज का मतलब हो गया फूड को एक प्रॉपर प्लेस पे रखना जब तक हमें उसकी ज़रूरत दोबारा ना पड़े कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए. एग्जाम्पल देखेंगे, कीपिंग बिस्किट्स एंड स्नैक्स इन एयर टाइट कंटेनर्स टिल यू यूज देम. फूड स्टोरेज, आप क्या करते हैं? बिस्किट्स को, स्नैक्स को, चिप्स को आप क्या करते हैं? एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं. ऐसा करने से क्या होता है? उनकी जो क्रिस्पनेस है, उनकी जो टेक्सचर है वो बनी रहती है. अगर आप उसे ओपन एयर में रख देंगे वो थोड़े समय में सॉफ्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, खाने लायक नहीं रहते, उनका क्रिस्प खत्म हो जाता है. सो दैट इज फूड स्टोरेज एंड फूड स्पॉइलेज. नेक्स्ट, the time for which a food can be kept fresh is called its shelf life. What is shelf life? जो वो समय है जिसमें आप फूड को फ्रेश रख सकते हैं, या कोई भी चीज़ जितने देर के लिए फ्रेश रहती है उसे उसकी शेल्फ लाइफ कहते हैं. कि हाँ, ये एक दिन तक फ्रेश रहता है तो इसकी शेल्फ लाइफ क्या है? 1 day है. Now based on the shelf life of food items they are classified into the following categories. तो अलग अलग फूड आइटम्स की जो शेल्फ लाइफ है, उनकी जो फ्रेशनेस का पीरियड है, उसके बेसिस पे इनके क्लासिफिकेशन किए गए. पहला बोला है पेरिशेबल फूड. पेरिशेबल फूड का मतलब फूड्स दैट क्विकली बिकम स्पॉइल्ड और अनसेफ फॉर कंजम्पशन. ऐसे फूड जो तुरंत खराब हो जाएंगे, थोड़ी ही देर में खराब हो जाएंगे, उन्हें पेरिशेबल फूड्स कहेंगे. एग्जाम्पल है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. आप थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दीजिए, वो गलने लगते हैं, रॉट होने लगते हैं. पीज थोड़ी देर आप बाहर रख दो, खराब हो जाएंगे. बीन्स, टोमेटोज, एप्पल, बनाना, ब्रेड, बटर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पेरिशेबल फूड. तुरंत खराब हो जाएंगे, ज़्यादा देर के लिए आप इनको बाहर नहीं रख सकते, इन्हें प्रॉपरली मैनेज करना ज़रूरी है. नेक्स्ट, सेमी पेरिशेबल फूड. सेमी पेरिशेबल फूड, फूड्स दैट डू नॉट रिक्वायर इमीडिएट रेफ्रिजरेशन बट गेट स्पॉइल्ड मोर क्विकली देन नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स. ऐसी चीज़ें जिनको तुरंत फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ी देर आप बाहर भी रखेंगे तो ठीक है, लेकिन ख़राब जब होते हैं तो तुरंत ख़राब होते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस्ड सीरियल्स, पल्सेस, एग्स, potatoes, biscuits, onions, cakes. These are the example of semi-perishable food items. Next, non-perishable food items. Foods that have a long shelf life and do not require refrigeration to prevent spoiling. ऐसे फूड जो कई समय तक खराब नहीं होंगे, एक लंबे पीरियड तक खराब नहीं होंगे, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है तो भी काफ़ी दिन तक ठीक रहते हैं, स्पॉइल नहीं होते. एग्जाम्पल, ड्राइड एंड कैंड बीन्स, पीनट बटर, टी बैग्स, कॉफ़ी, जेली, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन सीरियल्स, शुगर, जैगरी. ये ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी लंबे समय तक अगर आप बाहर भी रखें, फ्रिज में ना रखें तो भी ये ठीक रहेंगी, स्पॉइलिंग इनकी नहीं होगी, आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं. सो पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल, 3 different types of food based on
their shelf life. Talking about importance of food preservation, it is self understood. Food preservation is important to keep it fresh. तो पहला तो food preservation gives the food more variety. For example, if fresh peas are unavailable during hot summer month, canned or dehydrated peas can be obtained. आपने देखा होगा आजकल लोग क्या करते हैं कि पीस को उसके सीजन में ग्रो कर लेते हैं और ग्रो करके उन्हें वो स्टोर कर लेते हैं, कैन में स्टोर कर लेते हैं या उनको सुखा देते हैं और उसके बाद साल भर वो उसे जब भी कुक करना हो उसे पानी में डाल के बॉईल कर लो, वो सॉफ्ट हो जाएंगे, आप कुक कर लो. दैट इज फूड प्रिजर्वेशन का पहला, कि हमें वैरायटी मिलती है. सेकेंड, फूड प्रिजर्वेशन एक्सटेंड्स द फूड्स शेल्फ लाइफ. वेरी अंडरस्टूड है कि अगर फूड प्रिजर्वेशन आप करेंगे तो कोई भी आपका खाना है वो थोड़े लंबे समय तक चलेगा, उसकी शेल्फ लाइफ जो है बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा पीरियड के लिए फ्रेश रहेगा, ख़राब नहीं होगा, उसकी स्पॉइलेज कम होगी. नेक्स्ट, फूड प्रिजर्वेशन एक्सपैंड्स द सप्लाई ऑफ फूड. अब आप कई सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखोगे तो आपकी फूड सप्लाई क्या है, काफ़ी दिन तक बनी रहेगी. एग्जाम्पल दिया उन्होंने, इन डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान एंड इन हिमालयाज दैट आर कवर्ड विथ स्नो मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी फ्यू फूड आइटम्स कैन बी ग्रोन. अब जो दोनों ही एरिया है, राजस्थान वी नो इज़ अ ड्राई एरिया, बहुत ज़्यादा रेंस नहीं है तो एग्रीकल्चर वहाँ नहीं हो पाता. हिमालय भी कोल्ड एरिया है, वहाँ पर भी हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाते. सो देयरफॉर प्रिजर्व फूड आइटम्स कैन बी सेंट टू सच प्लेसेस. तो ऐसे जगह पर हम जो फूड हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जिसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा के रखी हुई, जिसकी स्पॉइलेज नहीं होगी, वो हम ऐसे जगह पर यूज़ कर सकते हैं. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मेक्स ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड्स ईजियर. अभी आपने प्रिजर्व कर दिया प्रॉपर, उसको बॉक्स में रख दिया, कैन में रख दिया, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है, उनका स्टोरेज ईजी हो जाता है. नेक्स्ट, फूड प्रिजर्वेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डाइटरी डेफिशिएंसीज. अभी आप फूड को प्रिजर्व करेंगे तो कई सारे अलग अलग तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी उसमें प्रिजर्व हो जाते हैं, जो कि जब आप उनको कंज्यूम करेंगे तो प्रॉपरली आपको उसमें आपका जितने भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी डाइट चाहिए, बैलेंस डाइट के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, वो सारे मिनरल्स, विटामिन चाहिए, वो सारे आपको मिल सकते हैं अगर आप फूड को प्रॉपरली आप प्रिजर्व करें तो. नाउ लेट अस मूव अहेड विद द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पर आपको इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछा जाएगा. मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, आउट ऑफ विच द फर्स्ट इज द नेचुरल प्रिजर्वेटिव. नेचुरल प्रिजर्वेटिव में क्या आ गया, नमक आ गया, सॉल्ट. कैसे करते हैं इससे फूड प्रिजर्वेशन? सॉल्टिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड. सबसे पुराना मेथड है फूड को प्रिजर्व करने का. Now, due to the presence of salt in the food, osmosis takes place, as a result of which water comes out of the food. हम क्या करेंगे, हम किसी भी फूड आइटम में नमक मिला देंगे. जैसे ही हम नमक मिला देंगे तो उस, आपको पता है कि जितने भी फूड आइटम होते हैं सब में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर तो होता है. तो जब जैसे ही आप उसमें नमक ऐड करोगे, सॉल्ट ऐड करोगे, उसका सारा का सारा पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा वो फूड हमारा. अब उसके अंदर ज़रा भी पानी नहीं बचेगा, और जब वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, देन when there is no or less water in the food, the microorganisms are not able to grow and food becomes safe. जैसे ही आप उसमें नमक मिलाओगे, सारा पानी उसका सूख जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो अब वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होगी. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होगी तो फूड आपका स्पॉइल नहीं होगा, लंबे समय तक वो स्पॉइलेज से बचा रहेगा, शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ जाएगी. नमक ऐड करने से, नमक से क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, पानी उसका सब खत्म हो गया. पानी खत्म हो गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो आराम से आपकी फूड की लाइफ ज़्यादा हो जाएगी. सॉल्ट ऑल्सो रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, दस प्रिवेंटिंग द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. खाने में ऐसे बहुत छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो खाने को स्पॉइल करते हैं. अगर उसमें नमक डाल दो तो ये एंजाइम्स जो हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको कह सकते हैं, इनकी भी एक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है, जिससे फूड हमारा स्पॉइल नहीं होता. सॉल्ट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव. सॉल्ट को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, पिकल, अचार में, फिश एंड कैंड फूड. जो कैन में हम फूड वगैरह पैक करते हैं उसमें भी हम सॉल्ट को यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, नेचुरल प्रिजर्वेटिव एंड द ओल्डेस्ट मेथड, सॉल्टिंग. नेक्स्ट इज द शुगर. Also acts as a preservative. Adding excess sugar to food items stop germ growth. Germ मतलब harmful bacteria. As the sugar gets dissolved in water present in the food items, resulting in less water being available for the growth of microorganisms. अब प्रोसेस को समझना कि सॉल्ट और शुगर दोनों में ही जो अप्रोच है दोनों का सेम है. अप्रोच दोनों का क्या है, फूड आइटम में मिक्स होकर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना,
और जब वाटर पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया तो फूड मटेरियल में जो फूड आइटम है उसमें वाटर नहीं है, वाटर नहीं है तो एंजाइम्स की ग्रोथ, या सॉरी एंजाइम्स की नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ उसमें नहीं होगी। तो शुगर और सॉल्ट दोनों का ही जो अप्रोच है वो सेम है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फूड आइटम को डिहाइड्रेट मतलब उसका पानी सारा सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फूड को स्पॉइल करने वाले ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट, शुगर particularly we use as a preservative. Sugar as a preservative is added for the preparation of jams, jellies, murabbas and squashes. इन चीज़ों में हम शुगर को एज अ प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एसिड्स। एसिड्स इंक्रीज द एसिडिक कंटेंट ऑफ फूड आइटम्स, thus preventing the growth of microorganism. Another very effective way of food preservation will be उसमें आप एसिड मिला दीजिए। ऐसा एसिड इज नॉट डेंजरस, एडिबल एसिड्स। इससे क्या होगा, जो हमारा फूड कंटेंट है उसका जो लेवल है वो फूड थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा, और जैसे ही वो एसिडिक हो जाएगा तो इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, उसकी स्पॉइलेज कम हो जाएगी या रुक जाएगी। फूड आइटम्स दैट यूज प्रिजर्वेटिव्स, जो एसिड जिनमें हम यूज करते हैं, क्या क्या हम, लेमन जूस एज अ प्रिजर्वेटिव हम यूज कर सकते हैं, विनेगर, सिट्रिक एसिड, दीज आर द एसिड्स विच कैन बी यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। Vinegar is used to preserve onions, lemon juice is used for pickles and citric acid is used in squashes. तो ये अलग अलग तरह के एसिडिक प्रिजर्वेटिव हैं जो अलग अलग फूड आइटम्स में हम यूज करें तो उनकी स्पॉइलेज जो है वो कम कर सकते हैं। When vinegar, salt and oil is used for preserving some fruits and vegetables, it is called pickling. Pickling मतलब जो अचार बनाने का प्रोसेस है, उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, विनेगर भी यूज करते हैं, सॉल्ट भी यूज करते हैं, ऑयल भी यूज करते हैं। किस में यूज़ करते हैं हम, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, हम अलग अलग फ्रूट्स के हम अचार बनाते हैं, अलग अलग वेजिटेबल्स के हम अचार बनाते हैं, तो उसमें हम विनेगर, सॉल्ट और ऑयल तीनों को जब हम यूज़ करेंगे तो इसे पिकलिंग कहा जाएगा। द रिजल्टिंग फूड इज कॉल्ड ए पिकल। जो हम अचार खाते हैं, जो हमारी मम्मी घर पे बनाती है, दैट इज पिकल। उसमें क्या क्या ऐड होगा, उसमें विनेगर होगा, सॉल्ट होगा, ऑयल होगा। वैसे तो अभी तक इस पर क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन चांसेस हैं कि शायद आपको पूछ सके, चांसेस कम है कि पिकलिंग पे क्वेश्चन आए, लेकिन हाँ पिकलिंग इज ऑल्सो, वो एक उसमें प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है। ऑयल क्या है, प्रिजर्वेटिव है अचार में, सॉल्ट क्या है, एक प्रिजर्वेटिव है अचार में, विनेगर क्या है, एक प्रिजर्वेटिव है। द नेक्स्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज बॉइलिंग एंड रेफ्रिजरेशन। इंपॉर्टेंट, boiling and refrigeration kills around 70% of the microbial growth, as the microorganisms cannot tolerate extreme temperature, thus preventing food spoilage. आपने देखा होगा घर में मम्मी दूध लेके आती है, जैसे ही सबसे पहले मम्मी दूध को बॉईल करती है, कंज्यूम करने से पहले हम क्या करते हैं, उसे बॉईल कर लेते हैं। क्यों, बॉईल करने से 70 to 80% के उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, वो सारे के सारे मर जाएंगे। और इवन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी और बेहद ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें ग्रो होने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जर्मिनेट नहीं होंगे, ग्रो नहीं होंगे। टेम्परेचर बहुत कम कर दिया फ्रीजर में जैसे हम करते हैं, तो वो भी वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। सो बॉइलिंग एंड रेफ्रिजरेशन, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मिल्क प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। देखना होगा अभी जो पानी, जब भी हम पानी पीना चाहिए हमें हमेशा बॉईल करके ही पीना चाहिए, क्योंकि बॉईल करने से उसके जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो मर जाएंगे। मिल्क वी नो, मिल्क वी ऑलवेज consume only after boiling it. So that is the boiling process, killing the microorganisms by heat treatment and then preserving it. Next is refrigeration. Refrigeration doing the same thing, temperature बहुत कम कर देंगे। Refrigeration is a easy method of preserving food for few days by lowering the temperature of the food. Food को कुछ दिनों तक preserve करना है तो उसका temperature हम कम कर देंगे। It preserves the taste, the texture, the nutritional value of foods. न्यूट्रिशनल वैल्यू तो उतनी ज़्यादा उसमें प्रिजर्व नहीं होती है, बट येस इट प्रिजर्व्स द टेस्ट एंड टेक्सचर टू सम अमाउंट। न्यूट्रिशनल वैल्यू, पूरा न्यूट्रिशन तो नहीं सेव कर पाते हम। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कुक्ड फूड कैन बी केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर फॉर प्रिजर्वेशन। तो ये कॉमन हैबिट हो गई है, अभी फ्रिज आ गया तो बना बनाया खाना हम क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, फिर उसे निकालते हैं, गर्म करते हैं और हम खा लेते हैं। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कॉमन, इट इज दिस प्रैक्टिस शुड नॉट बी डन। फ्रिज से निकला हुआ खाना हमें नहीं खाना चाहिए, that is not good actually, but अभी today's lifestyle and sedentary lifestyle rather हम ऐसा करते हैं, we should not do this.
नेक्स्ट इन्होंने थोड़ा फ्रीजिंग प्रोसेस को डिफाइन किया हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट. फ्रीजिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ फूड आइटम्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज. हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को फ्रीज कैसे करते हैं, उसका टेम्परेचर हम 0 डिग्री से भी कम कर देते हैं और उससे हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पास्चराइजेशन. व्हाट इज पास्चराइजेशन? पास्चराइजेशन, दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट लुई पास्चर. क्या करते हैं इस प्रोसेस में? इन दिस प्रोसेस द मिल्क इज हीटेड एट अ टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स एंड देन इट इज क्विकली कूल्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल टेम्परेचर. तो पहले हम इसे 15 सेकेंड्स के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर मिल्क को हीट करेंगे. इवन दो मिल्क का ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, हम सिर्फ इसे 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे और उसके बाद इसे हम ठंडा कर देंगे और उसका जो ओरिजिनल टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर हम उसे ले आएंगे. क्विक हीटिंग एंड देन कूलिंग. नाउ दिस इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड. व्हाई इट इज अ इफेक्टिव मेथड? बिकॉज दिस मेथड प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. मतलब जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को ये रोकता है. prevents the growth of microbes in milk. Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. Pasteurized milk एक ऐसा मिल्क है जिसे बिना बॉईल किए ही आप कंज्यूम कर सकते हैं. इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट इज ड्राइंग. ड्राइंग मतलब डिहाइड्रेशन, किसी चीज का पूरा पानी सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना. इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम फूड that prevents the growth of bacteria, yeast and fungi for the preservation of food. डिहाइड्रेशन में हमें क्या करना है, किसी भी फूड में से पूरा का पूरा मॉइस्चर, जो पूरा का पूरा उसका वाटर कंटेंट है, वो एब्जॉर्ब कर लेना है, रिमूव कर देना है. जिससे अब वाटर नहीं होगा तो बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं हो सकते, यीस्ट ग्रो नहीं हो सकते, फंगाई उसमें ग्रो नहीं हो सकते, किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं हो पाएंगे अगर आपने उसको डिहाइड्रेट कर दिया तो. And this is also one of the oldest method of food preservation. Food preservation का ये oldest method है, किसी भी चीज़ को ड्राई कर देना, सुखा देना. Example raw mango, cauliflower, dried fish, potato chips, पापड़, सेवैयाँ, वर्मिसिली बोलते हैं इंग्लिश में सेवैयाँ, फेन्यूग्रीक, मेथी. These are some of the food items preserved using the drying method. इसको हम ड्राई मेथड से प्रिजर्व करते हैं. Finally it is the canning. Canning also very effective method. Canning is the method of food preservation in which food contents like fruits and vegetables are processed and sealed in a airtight container at high temperature. Canning में हम क्या करेंगे, fruits और vegetable को airtight seal कर देंगे, हाई टेम्परेचर पर उसे एयरटाइट करके सील कर देंगे जिससे वो स्पॉइल नहीं होगा. निकोलस अपॉर्ट was a French inventor of airtight food preservation and therefore he is known as the father of canning. Father of canning किसे कहते हैं? निकोलस अपॉर्ट को कहते हैं. इन्होंने ही सबसे पहले ये मेथड ढूंढी थी. The process of canning is also known as appertization. इनके नाम पे बना है appertization. इसी प्रोसेस का नाम है. That is all the different methods which we have learned in this food preservation and cooking methods.